So today we are going to discuss a very trending topic, that is data science and data engineering. And for this we have Mr. Priyanshu with us. He's having 15 years of experience in the industry. So he will explain us the difference and the technicalities of data science and data engineering. So hi Priyanshu. Hi Pakush. So nowadays, like, everybody's talking about data science and data engineering. Okay, so what is your point of view on this? So basically data engineering is a lot to do with data preparation pipeline and basically getting the data ready for further analysis or modeling. Data sciences has more to do with preparation of the model, doing forecasting in a more scientific way. Of course, there are no dictionary definitions. So when you talk about data sciences, you have to get your hands dirty prior to getting into data science to understand how exactly is the data prepared. That's my personal experience, that you need to understand how exactly is the data getting processed and what are the technicalities there. Okay, got it. So thanks for explaining in a technical way. And there is a sometimes, like, there is a minor difference as a fresher. There's a minor difference between data science and data engineering, but that's not true. See, like I said, there are no dictionary definitions. So things overlap. Things when you get a JD, at times, unless they mention the designation, be it sciences or engineering, you may not be able to actually make out, because they would be mentioning about the skills, be it Python or SQL or creating models, right? So even in case of data engineering for certain dashboards and data processing, you might actually be using some of the models, you might be leveraging some of the outputs from the models to feed into your data pipeline. All right. So that's true even कि जब डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग की बात होती है, लगता है कि सुनने में एक जैसा ही लगता है, लेकिन हाँ, मतलब एक टेक्निकल डिफरेंस है इवन द प्रोसेस में भी और इम्प्लीमेंटेशन में भी। जैसे क्रोमा कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास में आते हैं एंड दे गॉट कंफ्यूज अबाउट कि डेटा साइंस में उनको जाना है या डेटा इंजीनियरिंग में उनको जाना है, बिकॉज उन्होंने दोनों चीज़ें सुन रखी है मार्केट में और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं इवन, बिकॉज जब वो जॉब पोर्टल्स पे जाते हैं, एमएनसीज की जब जॉब रिक्वायरमेंट्स देते हैं, उनके जेडीज देखते हैं, तो दे आर गेटिंग लाइक कि डेटा साइंस की इतनी रिक्वायरमेंट निकला है या डेटा इंजीनियर्स की इतनी रिक्वायरमेंट निकली हुई है। तो व्हाट डू थिंक, लाइक हाउ टू चूज कि मैं एज ए स्टूडेंट अगर मैं जाता हूँ तो मुझे डेटा साइंस में जाना चाहिए या मुझे डेटा इंजीनियरिंग में जाना चाहिए? प्लस एक और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि क्या मेरी क्वालिफिकेशन पर भी कुछ डिपेंड करता है कि मैं डेटा साइंस में जा सकता हूँ अगर मैंने ये किया हुआ है, या मैं डेटा इंजीनियरिंग में जा सकता हूँ तो मुझे ये चीज़ आनी चाहिए? कुछ ऐसा कुछ है? पहली चीज़, आई विल स्टार्ट विद योर सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, कि प्री रिक्विजिट्स क्या है? ऐसा कुछ नहीं है. टुडे द वर्ल्ड इज वेरी डायनेमिक. अ पर्सन हु इज, लेट्स से, इवन अ सीए can very well get into the data sciences or any stream. Actually there are no barriers to it. कोई entry barriers नहीं है, सब खत्म हो गए. Secondly, coming to हमें किस side, as a student what should I get into? I would say firstly, I mean that's my personal view, कि don't ever get into a kind of journey just for the sake of money or for the sake of कि आज इतने मार्केट में जॉब्स हैं, right? Always go by the interest that you have, क्योंकि जब तक आपको यूटिलिटी समझ में नहीं आएगी तब तक आप उस चीज़ को परस्यू ही नहीं कर पाओगे. अब आपने अगर डेटा के साथ काम करना शुरू किया तब आप समझते हो हाँ मेरे को अगर ये पता होता, फॉर एग्जाम्पल सिंपल केस ऑफ लेट्स से स्टॉक मार्केट. अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू करते हो, पहले आप समझना शुरू करते हो कि होता क्या है, फिर आप समझते हो यार अगर मेरे को कल का पता लग जाता तो मैं ये कर लेता, फिर वहां पर से इंटरेस्ट डेवलप होता है, यू गेट इनटू फोरकास्टिंग. नाउ यू नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट बट इवन अ कॉर्पोरेट थिंग, दैट्स वेयर यू गेट इनटू फोरकास्टिंग. यार मुझे अगले मंथ्स के टारगेट सेट करने फॉर माई सेल्स टीम, तो मुझे ये फोरकास्टिंग में इंटरेस्ट है. दैट्स व्हेन यू गेट ड्रिवन इनटू डेटा साइंसेस, डेटा मॉडलिंग. दैट इज अ बेटर पुल रादर देन कि नहीं यार आजकल बहुत ज़्यादा जॉब्स डेटा साइंसेज में आ रहे हैं तो मैं उसमें जाऊँ. If you are a person who is very good with data engineering,
डेटा का जो पॉलिशिंग होता है, डेटा को प्रॉपर क्या कहते हैं आउटलायर्स वगैरह हटाना, प्रॉपर शेप अप करना, इफ यू आर गुड विद दैट, व्हाई डू यू वांट टू स्विच टू अ करियर जस्ट बिकॉज डेटा साइंसेस में जॉब ज़्यादा है? डेटा इंजीनियर्स विल ऑलवेज बी इन डिमांड, क्योंकि डेटा बहुत सारा है, उसको मेंटेन करके रखना है. जस्ट बिकॉज इट्स अ फैंसी नेम, डेटा साइंटिस्ट कहते हैं आजकल तो, राइट? तो जस्ट बिकॉज यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, राइट, क्यों आप चाहते हो कि इंजीनियरिंग को हटा दो? ऐसा मत करो. राइट. सो कहने का मतलब आपका ये होगा कि हमें फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स, और फिर एज पर द इंडिविजुअल व्हाट टू से लाइक कि उसकी अपनी जो कैपेसिटी है या फिर एडप्टेंस है उसके अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करना चाहिए. राइट, दैट्स ट्रू. एक और चीज़, जब भी हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं क्रोमा में खास तौर पे, तो उनके बड़ा अजीब से क्वेश्चंस होते हैं, रियलिस्टिक क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली देखा जाए तो. अब वो बात करते हैं कि बहुत सारा मार्केट में ऐसी अफवाहें बोलें, रूमर्स हैं, या फिर आई डोंट नो, मतलब आप बेटर बता सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से हैं, कि पिछले 2-3 साल से क्या हुआ है कि ये जब से ये हम लोग एआई की बात करने लगे हैं, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट एआई. आज की डेट में तो न्यूज़ रिपोर्टर्स भी एआई वर्जन्स उन लोगों के मार्केट में आ गए हैं कि उनका एआई वर्जन पूरा रिपोर्ट करता है. तो क्या ऐसा है कि एआई के आने के बाद में कि जॉब्स में कुछ फ़र्क पड़ा, या फिर ऐसा हुआ कि कंपनीज ने बोला कि भाई अभी एआई आ गया तो मेरे डेवलपर्स का या मेरे डेटा साइंटिस्ट का या मेरे डेटा इंजीनियर्स का कुछ काम कम हुआ, या उनकी वैकेंसीज मुझे कुछ कट शॉर्ट करना पड़ा, कुछ ऐसा है मार्केट में? मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. मतलब मैं ऐसे ही अपने लिए सोच रहा था लिंक्डइन पोस्ट वगैरह डालूंगा, तो आई स्टार्टेड विद चैट जीपीटी. तो आई स्टार्टेड कंपोजिंग द चैट्स, मतलब मैसेजेस देयर, एंड ChatGPT is the king of AI nowadays. अभी बोल सकते हैं ना, फॉर लेमन यस इट इज किंग ऑफ AI जो आजकल चल रहा है. व्हाट हैपेंस इज, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वैल्यू बहुत बेसिक है, राइट, एनीबडी कैन डू, तो यस देयर आर डाउट्स ऑन योर जॉब. आई मीन you need to have some specific skill set, जो कुछ आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं. और फॉर एनी काइंड ऑफ whether you are entering into data sciences, अब you can always look into SQL code or Python code on ChatGPT, but unless you understand कि how do I frame my code so that it is most efficient for my specific requirement, that at least is not there for maybe next 10 years. मतलब मैं उसके आगे की तो गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अभी जब तक आप क्वालिटी ला रहे हो तब तक तो कोई वो नहीं है. मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो आपको कोर तक समझने की जरूरत है. ये नहीं कि आपने एक ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहे हो. यार ये प्रोग्राम लिखना था, आपने ट्रांसलेट करके दे दिया एक जावा C++ में, तो काम हो जाएगा, वो नहीं चलेगा. आपको समझना पड़ेगा कि हाउ इट इज मोर एफिशिएंट, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, हाउ इज मेमोरी कितनी यूज कर रहा है, या विच कोड इज मोर एफिशिएंट. फॉर एग्जाम्पल सिंपल SQL कोड मे बी यू कैन राइट इन 3 different ways, राइट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर योर स्पेसिफिक नीड विच वन इज मोस्ट एफिशिएंट. अच्छा, इसमें इस जो आपने अभी बताया, मैं इस आंसर में कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा अपना क्वेश्चन में. इसी से मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे आपने कोड की बात करी कि मैंने ChatGPT, क्योंकि स्पेसिफिकली हमने ChatGPT की बात की, तो ChatGPT में मैंने डाला कि मेरे को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक कोड चाहिए. उसने मुझे एक कोड दे दिया बना के, ठीक है ना. मेरे स्किल्स उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना, तो मैंने वो कोड लिया. अब मैंने कोड अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर लिया, ठीक है, वो रन हो गया, ऑब्वियसली रन हो जाएगा. तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है मार्केट में. जैसे कि हम लोग जो मतलब हमारे पास जो फीडबैक आता है कि भाई लोग ना कोड इधर से कॉपी करा उधर लगा दिया. अब प्रॉब्लम हो क्या रही है कि उस कोड ने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया होगा, बट उसकी वजह से भी कुछ और प्रॉब्लम जनरेट हो गई होगी मे बी सिस्टम में. और वो बात हमें हो सकता है आज ना पता लगे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन या 2 साल बाद पता लगे. तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा है कि हमारा मतलब खुद को ये पता होना चाहिए हमें, या इतने स्किल हम होने चाहिए कि वो कोड को यूज करें या ना करें? फ्रैंकली आज की इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. कोड कॉपी मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा है, और इसकी वजह से एक्चुअली में इश्यूज भी आ जाते हैं. पीपल एट टाइम्स दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि
क्या जस्ट चैट जीपीटी ने दिया, दे जस्ट पुश इट इन और वो रन कर जाता है एंड दे आर हैप्पी ओके विदाउट अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट थिंग इज मेंटेनेंस ऑफ दैट कोड. अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, इट्स नॉट लाइक A+B का प्रोग्राम तो नहीं लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा लंबा ही, मतलब इट्स अ बिग कोड. राइट आप उसे मेंटेन कैसे करोगे, राइट, अनलेस यू अंडरस्टैंड. सेकेंडली, when you talk is specific, I'm from the data industry. So data size इतना ज़्यादा होता है कि अगर आपका क्वालिटी कोड नहीं है तो रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं. मतलब तुरंत ही जब आप रन करोगे तो इट इज़ वेरी इनएफिशिएंट. ठीक है, जो आपका रन टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा होगा. लेट्स से यू आर अ गुड कोडर, आपको समझ में आती हैं चीज़ें, एंड देन यू जस्ट से कि यार इतना बड़ा कोड लिखने का क्या फ़ायदा है, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक विद माई इंस्ट्रक्शंस टू लेट्स से चैट जीपीटी एंड लेट इट राइट द कोड, बेसिक कोड. वो एक अलग चीज़ हो जाती है. ओके क्योंकि आप उसको डायरेक्शन दोगे. आप अभी रिसेंटली चैट जीपीटी ने तो वो भी इंट्रोड्यूस किया है कि यू क्लियरली स्टेट हाउ यू वांट चैट जीपीटी टू रिस्पॉन्ड. तो एक लेफ्ट साइड में नीचे सेटिंग्स में आता है, यू क्लियरली स्पेसिफाई द काइंड ऑफ एक्सपर्टाइज दैट यू आर लुकिंग फ्रॉम चैट जीपीटी. तो अगर आपको बैकएंड नहीं पता, वो दे ही नहीं सकते. चैट जीपीटी आपको उस तरीके से आंसर्स ही नहीं देगा. right. That's So you need to understand what you are getting into here. You cannot be like कि यार मैं आज CEO बन जाता हूँ, मैं चैट जीपीटी को बना दूंगा, I'll take the decisions all through with चैट जीपीटी. हाँ, मतलब ये चीज़ तो जब हम RPA की बात करते थे टेक्नोलॉजी में, जब RPA आया था तो बोलते हैं कि 10 लोगों का काम 2 लोग कर सकते हैं. ऐसा हमने ऑटोमेट सिस्टम बना दिया. बट हाँ, वो वहाँ पर भी टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत होती थी. अच्छा, एक और चीज़ हमारे आती है, मतलब क्योंकि आप स्पेसिफिकली डेटा साइंस और एक डेटा इंडस्ट्री की बात करूँ मैं क्यों है, और डेटा का तो मतलब डे बाय डे डेटा इज इंक्रीजिंग एंड द फिल्ट्रेशन ऑफ डेटा अगर बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. बड़ा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लोगों को चाहिए होती है अपने पूरे डेटा में से. तो जैसे स्किल्स की बात करते हैं, हम लोग स्किल्स की बात करते हैं तो कई सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, कुछ पास स्टूडेंट्स भी हैं. तो क्या डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग में कुछ ऐसा स्पेसिफिक स्किल है जो उनको आना चाहिए? जैसे कि हमारे पास रिसेंटली कुछ क्वेरीज आई थी, तो वहाँ पर वो बोल रहे थे कि भाई अगर आप डेटा साइंस में जाना चाहते हो तो आपको पहले पाइथन आना चाहिए. पाइथन का नेक्स्ट स्टेप आई गेस मशीन लर्निंग आपके पास होता है, मशीन लर्निंग आपको आना चाहिए. उसके बाद में फिर आपको AI आना चाहिए. उसके बाद में आप डेटा साइंस वाले पर पहुँच सकते हो, और मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड डेटा साइंस. तो ऐसा कुछ है कि आपको पहले ये सीखना है या ऐसा कुछ है? लार्जली यस, आप ऐसे कह सकते हो. बट मैं आपसे बोलूँगा, सिंस यू आर फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, पाइथन के पहले R होता था बहुत ज़्यादा. प्रोग्रामिंग, यस, राइट. अब आज की तारीख में शायद ही कोई बात भी करता है. लास्ट 10 JDs में मैंने देखा भी नहीं होगा किसी ने R की रिक्वायरमेंट डाली है. अच्छा, सॉरी इंटरप्ट करो यहाँ पर. सो व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन कि अब R को पाइथन रिप्लेस कर रहा है? लार्जली बिकॉज आई फील द पैकेजेस आर मोर रिलायबल ऑन पाइथन. अच्छा, कंपेयर टू R. जो भी थे लार्जली R वाले तो सारे पैकेजेस हैं ही हैं. Frankly speaking, I am not an expert into this domain. I work with my specific packages. But मेरी ये रीडिंग है कि जो Python के पैकेजेस हैं, firstly Python is very user friendly, relatively to coders. ठीक है. I would say उसका documentation और web help काफी ज़्यादा vast है compared to R. और दूसरा मैं ये भी कहूँगा शायद इसका legacy का भी reason है. Python is not Python is an age-old language. तो उसका जो community है वो भी उसी तरीके से evolve हुई. Frankly speaking, कोई reason specific नहीं है R why it went down and why Python is picked up, except for the fact कि community support जो है वो बहुत ज़्यादा है. इसी की वजह से पैकेजेस उसमें ज़्यादा हैं, इसीलिए एक्सेप्टेंस उसका ज़्यादा होगा, इसीलिए एक्सेप्टेंस ज़्यादा है. दिस इज द कोर रीज़न. अगर कोई स्पेसिफिक टेक्निकल रीजंस होंगे विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम efficiencies or program efficiencies, so I'm not very sure of those things. They could be, but I'm not sure. Alright. So when you say जो आपका क्वेश्चन था, पैकेज तो एक डेटा साइंटिस्ट का वही बनता है कि आपको पाइथन आती हो, फिर AI/ML में आपको आता हो. So this is what the package for a data scientist is.
ओके जैसे मतलब हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है बोलता है कि मेरे को डेटा साइंस कोर्स करना है, तो हम मतलब जब हम हमारे काउंसलर्स उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि डू यू हैव अंडरस्टैंडिंग पाइथन कि नहीं, तो देन यू हैव टू लर्न द पाइथन, देन द स्टेप्स. डेटा साइंस इज नॉट लाइक लेट्स स्टार्ट डेटा साइंस कोर्स. इट विल वर्क once you need to understand Python as a language and then the other parts. Okay, तो डेटा इंजीनियरिंग में भी सिमिलर वे में चलता है या देयर इज अ डिफरेंस कि अगर मैं डेटा इंजीनियरिंग में जा रहा हूँ स्पेसिफिकली उस कोर्स में जाता हूँ तो मुझे पाइथन या ऐसा कुछ आना चाहिए? तो इसका जो मैंने पहले भी कहा था कि डोंट गेट स्पेसिफिक टू वेदर यू वांट टू गेट इनटू डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग. अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग इनटू. जब आपको उसका लगेगा कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है देन यू गेट इनटू इट. अगर आपको पाइथन नहीं आता और आपको ML/AI सीखना है तो आई थिंक थोड़ा सा बैकफुट ले लो, समझ लो पहले पाइथन में कैसे क्या हो रहा है. बट पॉइंट इज कि हाउ एफिशिएंट दे आर यू एबल टू अंडरस्टैंड देम ऑल्सो. इसमें भी बहुत ज़्यादा हो गया आजकल. बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ड्रैग एंड ड्रॉप का कंपेयर टू कोडिंग, राइट? So even that is, I'm not sure how exactly it is going to turn out. That's another chapter anyways. But मुझे लगता है ये जर्नी तो एक सही है कि आप एक लैंग्वेज पकड़ो, एक कोड पकड़ो पाइथन and then you start from there. तो जैसे आपने बताया कि अभी कि ड्रैग एंड ड्रॉप पर लोग बहुत ज़्यादा हैं कोडिंग में, खास तौर पे ड्रैग एंड ड्रॉप में ज़्यादा, क्योंकि मुझे याद आता है कि जब मैं कोडिंग किया करता था, मैं C++ या C# की जब कोडिंग कर रहा था विजुअल स्टूडियो में, तो वहाँ पर इंक्लूड conio.in और वो हम लोग डायरेक्टरीज को लाते थे. मुझे कुछ ध्यान आ रही है ऐसे करके. अभी तो आई डोंट नो कि कितने लोग बैठ के सच में स्टार्ट करते होंगे प्रोग्राम को और एंड करते होंगे. तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो फीचर आपने बताया, मतलब दैट इज़ वेरी न्यू फॉर अस ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो कोडिंग में आ गया है, तो इसमें मतलब क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर इसमें कुछ कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं जो कि हेल्प करते हैं? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ वर्डप्रेस का. राइट, एलिमेंटस. और वर्डप्रेस तो अपने आप में बहुत वास्ट है. अब वर्डप्रेस, अब मेरे को समझ में आ गया आपने किया हुआ है इस पे काम. अगर मेरे को एक छोटा सा एक इनपुट फॉर्म बनाना है, आपको पता है कितने प्लगइन्स यूज करते हैं हम लोग? और जितने प्लगइन्स करते हैं हम लोग यूज, उतनी ज्यादा हमारे सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ जाते हैं, राइट? वही चीज अगर मेरे को एक सिंपल सा कोड करके करना होगा, शायद 10 लाइन का कोड होगा, राइट? अ रिलायबल कोड होगा, सिक्योर्ड कोड होगा, या डेटा सिक्योर्ड, राइट? तो when you say कि you can do drag and drop, when you know आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो या आपके पास प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं, दे ऑलवेज हैव देयर ओन कॉम्प्लेक्सिटी अटैच्ड टू इट. और आप सिर्फ उसकी कोडिंग का मतलब आप सिर्फ डेटा पाइपलाइन मत देखो, डेटा सिक्योरिटी भी साथ में आ जाती है आपकी, राइट? आपको सिर्फ एक आउटपुट नहीं चाहिए कि हाँ ठीक है A+B किया था, उसका रिजल्ट आना चाहिए. अब A+B करने में अगर वो आपकी पूरी सिस्टम की मेमोरी खा गया तो दैट्स अ फेलियर. देयर आर टूल्स, मैं किसी को भी वो नहीं कह रहा हूँ कि इट्स बैड, बट देयर इज एन इंडस्ट्री, द होल न्यू इंडस्ट्री ऑफ Qualtrics राइट नाउ. इट्स अ गुड टूल आई वुड से. बट आपके साथ जब आप क्रिएट करते हो ना जॉइंट्स, कुछ कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स आते होते हैं जहां पर लेट्स से सिंपल सी चीज है जहां पर आपके ग्रेटर देन जॉइंट्स लगते हैं, जहां पर आपको ग्रेटर देन कंडीशंस लगानी होती है, वो आपके बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जो कि सीक्वल में सिर्फ एक ग्रेटर देन साइन के साथ हो जाएंगे, राइट? तो अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो लाइफ बिकम्स अ लॉट मोर इजी. एक वो ब्लैक स्क्रीन जो है ना, दैट ब्लैक स्क्रीन इज मच बेटर देन ऑल यू नो मल्टी कलर्ड स्क्रीन विद डिफरेंट कलर्ड बॉक्सेस. दैट्स माय, दैट्स ट्रू. एक और मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक एडटेक कंपनी है, तो मेरा थोड़ा सा ध्यान इस पे भी जाता है कि मार्केट में ना मतलब पिछले कुछ समय से अगर मैं बोलूँ कि पोस्ट कोविड, खास तौर पे पोस्ट कोविड में क्या है कि लोगों का लर्निंग का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है ना, कि बहुत सारे सेल्फ पेस्ड कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं. ऑनलाइन लर्निंग पे हम लोग ज़्यादा आ रहे हैं, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग कि आई एम सिटिंग इन ABC लोकेशन एंड माई ट्रेनर इज इन 1200 माइल्स फ्रॉम माई लोकेशन और मैं उसके साथ में पढ़ रहा हूँ.
Right. तो क्या आपको लगता है कि इस लर्निंग प्रोसेस में कोई रिकमेंडेशन हमारे बच्चों के लिए, आपके लिए, कि भाई कैसे मैं इसकी तैयारी करूं, जो भी हमने अभी डिस्कस किया डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग का, या MNCs में, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, आप पिछले 15 ईयर्स से आप MNCs में काम कर रहे हो, मल्टीपल डोमेन्स में आप कंपनीज में आप काम कर चुके हो, तो कुछ उनका इंटरेस्ट आता हो कि बच्चा ऐसा होगा, ऐसे बच्चे मुझे ज़्यादा आप अपनी टीम में लेते हो कि जिन्होंने इस तरह से पढ़ा हो या इस तरह से अंडरस्टैंडिंग लिया हो, कुछ ऐसा है? आई विल से लर्निंग, इसमें एक एस्पेक्ट में और ऐड करूंगा जो AI बेस्ड लर्निंग हो रही है. ओके. अर्लियर वी यूज टू सर्च ब्लॉग्स और ये सब, फिर यूट्यूब आ गया एकदम से, बहुत ज़्यादा हर किसी के वेबकास्ट होते हैं, अपने ट्यूटोरियल्स होते हैं. उसके बाद अब तो ChatGPT आ रहा है जो स्पेसिफिक मुझे लेट्स से कोड पूछना होगा, फॉर एग्जांपल कि पावर BI में पैरामीटर्स कैसे डिक्लेयर करते हैं थ्रू पावर क्वेरी, तो मैं उसमें एक स्पेसिफिक सिंगल स्टेटमेंट डाल करके वो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस पूछ लूँगा. नाउ problem with self-paced or this AI based learning is, अब मेरे को पता होना चाहिए कि पैरामीटर्स डालने क्या है, कहाँ पर एक बैकएंड पे एक लॉजिक होनी चाहिए कि पैरामीटर्स यूज कहाँ करते हैं, वो कहाँ से आएगी. आई कैन गेट ऑल द आंसर्स बट आई नीड टू हैव द क्वेश्चन, राइट. हाँ. अब सेल्फ पेस्ड में मैंने एक और चीज देखी है, सेल्फ पेस समहाउ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डिसिप्लिन के साथ में. ठीक है, अब फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैंने कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे, ठीक है, तो आई एम लाइक, मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैंने तो जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा था उसी के ही मैंने 10 अलग अलग लोगों के कोर्सेज देखे. तो उसमें क्या होता था, 1 घंटे का आप सेशन देखोगे तब आपको 5-6 मिनट का वैल्यू ऐड मिलेगा, राइट. कई बार ऐसे होता है क्योंकि कई चीज़ें आपको पता होती हैं. अब आपको अगर पॉलिश करनी है अपनी चीज़ें तो यही हो जाता है कि आपको काफ़ी रिपीटेटिव कंटेंट मिलता है. तो क्या ये आप कर सकते हो? इट्स अ बिग चैलेंज, राइट. और एक जो कोर फाउंडेशन होती है, मेरे को तो अभी टीचर्स ही याद आते हैं. One more thing, Priyanshu, like you are having experience in Power BI and WordPress, PHP. Now you're working as a data analyst, right? So what do you think, like people coming through these technologies, और उनको अगर data analysis में आना है या data analyst बनना है, specifically बोलूँ तो क्या challenges उनके साथ में रहते हैं? So specific to my case, I would say, see, I started my journey as software tester. Okay. उसके बाद I had my own startup, ठीक है, wherein I was developing applications. So I was working very closely with PHP, WordPress. That's where that experience comes into play. बीच में फिर I also had a project for performance testing. ठीक है. Then in my current organization, I am working purely on data. When I join the dots backwards, I always see them falling in line to some extent. For example, when I work with data security somehow is always at the back of my mind. Right. क्योंकि टेस्टिंग में हम लोग वही करते थे कि that's way back in 2007, तब तो HTTPS भी नहीं था, बट I was always कि data secured कहाँ, application secured है कि नहीं. We were working on a banking application. From there I got into code development. तो टेस्टिंग वाली चीज़ें काम आने लगी कि जब एज अ डेवलपर किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है so that the program is safe, secured and good quality, right? उसके बाद when I worked on performance, that was a complete new paradigm, but I realized कि garbage collection क्या होता है, right? ये सिस्टम की परफॉर्मेंसेस का क्या मतलब होता है, राइट? अब आज जब मैं डेटा को इस तरीके से देखता हूँ, व्हेन यू राइट अ सीक्वल, आई अंडरस्टैंड कि इस सीक्वल को इस तरीके से लिखने पे एक आता है दिमाग में कि सिस्टम पे लोड कौन सा कितना पड़ेगा और किस टाइप से क्वेरी को लिखोगे तो परफॉर्मेंस बेटर आएगी, मेरे को रिजल्ट जल्दी आ जाएगा. सो आपकी जो लर्निंग है वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है. पीछे आप अगर मेरी पहली कंपनी में बहुत सारे लोग इंडस्ट्री से आते थे, फॉर एग्जाम्पल बैंक से आते थे, दे वर गेटिंग इनटू सॉफ्टवेयर. तो
आपकी एक लर्निंग जो होती है ना, अगर आपकी जितनी अच्छी लर्निंग पहले की होगी वो आपको हमेशा इम्प्रूव करेगी, बिल्कुल आपको हमेशा एनहांस करेगी टू डू योर करेंट जॉब बेटर. आप अगर डोमेन स्विच करते हो तो ऐसा नहीं है कि जो आपका प्रायर एक्सपीरियंस है वो बेकार कभी नहीं होता. वो हमेशा आपका एक आपको इवॉल्व करता है. राइट. तो गोइंग फॉरवर्ड लाइक अगर मैं लास्ट में बात करूँ कि जॉब्स की, क्योंकि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनका एक बड़ा कंसर्न रहता है, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनका भी कंसर्न रहता है और फ्रेशर्स का भी कंसर्न ये रहता है कि भाई व्हाट आफ्टर डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग कोर्स. सो मार्केट में डिमांड कितना है वो तो इवन एवरीबॉडी नोस कि कितना है, बट स्पेसिफिकली अगर मैं टॉप 10 MNCs की बात करूं इंडिया में, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजन है, फेसबुक मेटा है, या फिर इन्फोसिस की बात करता हूँ मैं, तो ये जो हमारे पास टॉप 10 या टॉप 15 MNCs हैं, तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस कैसा है एक फ्रेशर का डेटा साइंस या डेटा इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज लेने के बाद जाने का? यार डेटा साइंसेस इन इटसेल्फ इज अ वेरी न्यू इंडस्ट्री और इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा स्कोप है फ्रेशर्स का. फ्रेशर्स का मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ, पीपल विद वेरी लेस एक्सपीरियंस, 1 or 2 years 3 years, दे आर डूइंग रियली वेल. क्योंकि पीपल विद डिफरेंट टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, वो कुछ हद तक अपना बैगेज कैरी कर रहे होते हैं, वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं रह जाते. राइट. तो मुझे लगता है फ्रेशर्स के लिए तो बहुत अच्छा स्कोप है दे स्टार्ट विद, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, वो भी 10 साल बाद वो हाल वैसा सा होगा उनका भी. बट अनलेस यू अपडेट योरसेल्फ, आपको अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है. अपडेट. राइट. आपको अपने आप को मार्केट के साथ लेकर के चलना पड़ेगा. सो अब हम लोग अपने लास्ट मॉड्यूल में आते हैं. ओके. सो दिस इज अ रैपिड फायर. सो आई विल गिव यू 2 options, so you have to select one and you cannot pass. Okay. Big company or startup? Startups. First salary? King size. Android or iPhone? Android free होता है यार. Work from home or work from office? Hybrid. Okay. Your first girlfriend? Never had. Okay. Thank you so much for your time. Thank you.